Okay, in the previous class, we have studied how to add and how to subtract on a number line. Okay, in this class, we will study about division, division on a number line. Okay, today we will study about division on a number line. Yes, sir. Okay, when I talk about division on a number line, actually we are performing subtracting operation on a number line. Is it clear? Means division is somehow is a form of subtraction. Okay, and after subtracting, we count the number of times we subtract. Okay, we count the number of times we subtract. Okay, let's perform the division operation on a number line. Okay, suppose 6 is divided by 3 on the number line. Okay, this operation we have to perform on the number line. ठीक है, हमको क्या करना है, 6 को 6 में 3 से डिवाइड करना है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, we will draw a number line. क्या करेंगे बेटा, we will draw a number line. ठीक है, और जब हम लोग whole number Draw को a number line. when we study about the whole number, we all know that it start from 0. So our number line also start from 0. Okay, then 1, 2, 3 and so on. Similarly, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and so on. We will represent this whole number on a number line. After doing that, what we will do? Look, in 6 we have to divide with 3. Okay, so first we will move 6 units. Yes. How much units? 6 unit on the number lines. Okay, in which direction? Toward the right of 0. Okay, toward the right of 0. ठीक है, ये क्या 0 है, ये डायरेक्शन क्या है, राइट है. ठीक है, क्योंकि 6 क्या है, 6 इज अ होल नंबर. ठीक है, तो होल नंबर का इंक्रीजिंग ऑर्डर कैसे होता है, जब हम राइट की ओर मूव करते हैं, द होल नंबर विल इंक्रीज. इफ वी मूव फ्रॉम 0 and we want to reach 6, then we have to move right of 0. We will not move on the left direction. We will not move on the left direction. Is it clear? And how much unit Yes, sir. you have to move? You have to move 6 unit. From here, 0 we will move 6 unit. That is the 1 unit, 2 unit, 3 unit, 4 unit, 5 unit and 6 unit. Okay, and we reach the point 6 here. Okay, this is the point which represents 6 on the number line. Okay, after doing this all, from 6 how much we have to divide? We have to divide 3. That means we will start dividing 3 in the 6. For that, what we have to do? We have to perform the subtraction operation.
we will subtract. Okay, how much we will subtract? We will subtract 3 from which? From 6. Okay, every time we will subtract 3 and count them 1 unit. Okay, how much units? We will subtract 3 each time and count it 1 unit. Is it okay? हम लोग क्या करेंगे, इस 6 में से हर बार 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जितना बार 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक बार को हम लोग 1 यूनिट काउंट करेंगे। और ये सब्ट्रैक्शन कब तक करेंगे? जब तक हम लोग 0 पे ना पहुंच जाए। ठीक है, अब देखो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? जब हम लोग होल नंबर पे सब्ट्रैक्शन करते थे तो हम लोग किधर मूव करते थे? Left. When we subtract on a number line, we have to move towards left or right. For subtraction, where we will move? On the left or on the right? Left. Left, yes. From we have to subtract 3 from the 6. That means we will move 3 unit towards the 6. From the 6, okay? This is the first unit, second unit, and the third unit. Okay? And what I have written here, we subtract 3 each time till we reach to the 0 point and count it 1 unit. हमने क्या किया? 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया और कहां पे पहुंचा बेटा? 3 पे। और इसको हम लोग क्या काउंट करेंगे? कितना यूनिट? 3 यूनिट। इसको 1 यूनिट काउंट करेंगे। इन द डिवीजन हम लोग इसको कितना यूनिट काउंट करेंगे? 1 यूनिट। ठीक है बेटा, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, वी विल सब्ट्रैक्ट 3 each time till we reach to the 0 point and count it 1 unit. जो 3 यूनिट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हर बार उसको 1 यूनिट काउंट करेंगे। और ये सब्ट्रैक्शन कब तक करेंगे? जब तक कि हम लोग 0 पे ना पहुंच जाए। ठीक है, अब देखो क्या हम 0 पे पहुंचे? Shall I reach at 0? इस पॉइंट को देखो, ये क्या 3 है। Shall I reach at 0? No, we will not reach at 0. What we'll do? We will subtract 3 one more time. 1, 2, 3. Now we reach at 0. And what I said? देखो जो 3 यूनिट है सब्ट्रैक्शन का उसको हम लोग 1 यूनिट बोले। फिर ये भी क्या होगा? 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट। ये भी क्या होगा? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? 1 यूनिट। कितना बोलेंगे बेटा? 1 यूनिट। अब देखो 1 यूनिट इधर हुआ, 1 यूनिट इधर हुआ। 6 से 3 के इंटरवल पे सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग जब 0 पे पहुंचते हैं तो कितना यूनिट होता है? यहाँ पे 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट। 2 यूनिट होता है। यही जो 2 यूनिट्स है यही बेटा कोसेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? कोसेंट। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है? यस सर। इसी को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। इसको लिखते भी जाओ, दिस इज कॉल्ड कोसेंट। हमने क्या बोला? हम लोग क्या करेंगे? 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे एंड we will subtract 3 unit till we reach at the 0 point. Okay, and how much times we subtract 3 from this 6?
इज द कोसेंट। ठीक है, अब देखो इस 6 में से अगर हमको 3 को निकालना हो तो कितना बार निकालेंगे 3? अगर 6 में से अगर हमको 3 को निकालना है तो कितना बार निकालेंगे? हाँ हाँ जी, so 1 टाइम। हाँ देखो बेटा यहाँ पे देखो 1 टाइम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो बेटा, ये 6 है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना, 6 में यहाँ पे पहुंचे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 6 में 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो 6 में 1 2 3, अब ये 3 यूनिट एक बार निकल गया, एक बार निकल गया ना बेटा, कि नहीं निकला? यस सर। लेकिन अभी भी इसमें क्या है, कुछ बचा हुआ है, बचा हुआ है कि नहीं है? अभी भी इसमें कुछ बचा हुआ है ना, अभी तक हम लोग 3 पे ही पहुंचे हैं। क्या हम लोग 0 पे पहुंच गए? नहीं। शैल आई रीच एट 0? नो। इसमें क्या है, कुछ न कुछ बचा हुआ है, हम लोग फिर 3 यूनिट निकालेंगे। ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। अब हम 0 पे पहुंच गए, मतलब इस 6 में क्या कुछ नहीं बचा हुआ। तो कितना बार हम यहां पर भी क्या हुआ, एक बार निकाले और एक बार इधर निकाले, टोटल 3 यूनिट कितना बार निकाले? टोटल 3 यूनिट कितना बार निकाले? बोलो। एक बार यहां निकाले ना और एक बार यहां पे, मतलब टोटल जो 3 यूनिट निकाल सकते हैं 6 में से कितना बार निकाल सकते हैं? और जितना बार निकालेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं बेटा? उसी को बोलते हैं कोसेंट। समझ में आया? और यहाँ पे कोसेंट क्या हो रहा है, जब हम लोग 6 में 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बार सब्ट्रैक्ट किए? 2 टाइम्स, एंड दैट 2 टाइम्स इज कॉल्ड द कोसेंट। समझ में आया कि नहीं? हाँ सिंपल, समझ में आया? यस सर। हाँ यस सर। चलो, ये नंबर लाइन है, ठीक है बेटा? इसको लिख रही है कि नहीं? 5। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, 4 डिवाइडेड बाय 1 करना है ऑन नंबर लाइन। क्या करेंगे सबसे पहले, तुम बताओ, व्हाट वी विल डू? बोलो। 4 में यस से सर। 4 में 1 को डिवाइड करना है नंबर लाइन पे, क्या करेंगे? सर लेफ्ट साइड से ले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे लेफ्ट साइड? सर राइट साइड से इस तरफ ले जाएंगे 1 पे, पहले 4 से 3। तुम कुछ खा रही हो क्या? नो सर। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। क्या होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट। हम लोग क्या करेंगे, 0 के राइट में मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे बेटा? 0 के राइट में कितना यूनिट? 4 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट। अब हम लोग कहां पहुंच गए, 4 पे। हमको क्या करना है, 1 से डिवाइड देना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, हर बार क्या करेंगे, इस 4 में से, ठीक है बेटा, ये जो 4 देख रही हो ना, इस 4 में से 1 यूनिट को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे बेटा, 1 यूनिट्स को बाहर निकालेंगे। और कितने बार हम 1 यूनिट्स को इस 4 से बाहर निकालते हैं, जो नंबर ऑफ टाइम्स होगा निकालने का, उसी को हम लोग बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं बेटा? कोसेंट बोलते हैं। और जब हम लोग लिखते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या होता है, कोसेंट ही तो होता है। अब इस 4 में देखो, हम लोग क्या करें, इस 1 को निकालना स्टार्ट करें। ठीक है बेटा,
अब इस 4 में से एक बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? कहां पहुंचेंगे? कहां पहुंचेंगे? हम लोग जब 4 में से एक निकालेंगे तो कहां रीच करेंगे? 3 पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इस 3 में से 1 निकालेंगे, कहां रीच करेंगे? 2 पे। फिर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट Okay. करेंगे, कहां पहुंचेंगे? 1 पे। फिर 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कहां पहुंचेंगे? 1 पे। अब ये सब्ट्रैक्शन कितना टाइम्स हुआ? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। मीन्स जो 4 डिवाइडेड बाय 1 होगा, इसका कोसेंट क्या होगा? 4। क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है? वही कोसेंट होता है। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू कोसेंट। एम आई राइट? समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. चलो नंबर लाइन पे इसको करके दिखाओ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब चलो 8 डिवाइडेड बाय 4 करो। कैसे करेंगे बताओ? बोलो। On number line we have to perform 8 divided by 4. How we will do it? Tell me. सबसे पहले क्या करेंगे? सर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिख रहा है? सर आप दिख रहा है, उस टाइम नहीं दिख रहा था। हमको 8 में 4 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? ऑन नंबर लाइन। सर तो 0 से राइट साइड ले जाएंगे कितना 1 पे। यूनिट? यूनिट। हाँ, कितना यूनिट मूव करेंगे? 1 यूनिट। 1 यूनिट मूव करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 8 यूनिट मूव करेंगे 0 के राइट में, और इस 8 को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन नंबर लाइन। ठीक है, आप जो है ना चीफ गेस्ट बन के आओ कभी कभी। ठीक है, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 7 यूनिट, 8 यूनिट। अब हम लोग कहां पहुंचे? 8 के ऊपर। ठीक है, अब इस 8 में से हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। किसको? 4 को। तो हम लोग क्या करेंगे? इस 8 में से 4 को आउट करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? 8 आउट ऑफ दिस 8, ये जो 8 देख रही हो ना, 8 यूनिट्स में से हम लोग 4 को आउट करेंगे, मींस सब्ट्रैक्ट करेंगे, और नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट करेंगे कि इस 8 में से कितने बार हम 4 को आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखो यहां पे 1 2 3 4। अब हम कहां पहुंचे? 4 पे। ये क्या हुआ? इतना 4 क्या हुआ? आउट हो गया। ठीक है, इसको हम लोग 1 टाइम्स कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या हम 0 पे पहुंचे? नहीं। फिर क्या करेंगे हम लोग? 4 यूनिट को आउट करेंगे। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। ये भी 4 क्या होगा? आउट। और हम लोग कहां पहुंच गए? 0 के ऊपर। क्या हुआ? एक बार ये 4 यूनिट आउट हुआ, एक बार ये 4 यूनिट आउट हुआ। टोटल 8 में से हम लोग कितने बार 4 यूनिट आउट किए हैं? 2 बार। और यही 2 क्या होता है बेटा? कोसेंट होता है। ठीक है, सिंपल कुमारी। यस सर। आज तुम कितने दिन बाद क्लास सब में आई हो? वीडियो नहीं दिख रहा, आवाज से सुनाई दे रहा। आज वीडियो कैसे नहीं दिख रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता वीडियो नहीं दिखेगा। अगर मेरा आवाज सुनाई दे रहा है तो वीडियो भी दिखेगा। सर नहीं आ रहा है। आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है हमको।
ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं दिखेगा। अब आ गया। आपके स्क्रीन पर हमेशा वीडियो दिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं। आप पिछले क्लास में कहाँ थी? पिछले क्लास में कहाँ थी? यस सर। पिछले क्लास में कहाँ थी? सर मोबाइल में कनेक्टेड नहीं जल्दी पकड़ता है। अच्छा, तुम मनीष का भाई बहन हो क्या? ठीक है, तो दिस इज द मेथड टू परफॉर्म क्या? डिवीजन ऑपरेशन ऑन ए नंबर लाइन। इज इट क्लियर? अगर नहीं क्लियर हो रहा है, इस वीडियो को फिर से जाके देखना, ठीक है। आई विल erase दिस ऑल। ओके, आफ्टर डिवीजन मेथड we will Okay, study sir. about the property of operator. Properties of operators. Okay, properties of operator. In this property we will study about commutative law, associative law, and distributive law. Okay, first we'll go through the what is commutative Yes. law. ठीक है, commutative law क्या होता है? ठीक है, देखो commutative law क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, commutative law, for example, tell me 4 plus 3, what it is? 7. 7. 7. Now what we'll do, we will change the order, means in place of 4 we will write 3. Okay, and in place of 3 we will write 4. Is it clear? समझ में आया? हमने क्या किया, चेंज किया किसको? ऑर्डर को। Yes. किसको चेंज किया बेटा? ऑर्डर को। जो देखो 4 Order प्लस को। 3 था इज इक्वल टू 7 हुआ। हमने क्या, जहां पे 4 था वहां पे क्या लिखा? इस 3 को ले आया। क्या किया बेटा? 3. 3। और 3 को 3 के जगह पे किसको ले आया? 4 को 4 को। और जो दोनों को क्या किया? ऐड कर दिया। अब बोलो क्या रिजल्ट होगा? 7. 7। क्या देखे? सर नीचे वाला का भी 7, ऊपर वाला का भी 7। हाँ, क्या हम जब ऑर्डर को चेंज किए, जब हम लोग एडिशन कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं बेटा? एडिशन। कौन सा कर रहे हैं? एडिशन कर रहे हैं। एडिशन। जब हम लोग एडिशन कर रहे हैं और जब हम ऑर्डर को चेंज कर दिए, क्या रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नो सर। नो। तो इसी को बोलते हैं, दैट मींस एडिशन विल फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। एडिशन क्या करता है बेटा? इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। मींस इफ वी चेंज द ऑर्डर देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट, एंड दैट इज कॉल्ड, दैट मींस द एडिशन इज following the commutative law. Please write it. If सर लिख लिए। order is changed in addition, for addition, the result will not changed. Is it okay? Now tell me, 4 into 3, what will be the result? 4 into 3, what will be the result? 7. 7. Now जो 4 के प्लेस पे हम लोग 3 को ले आएंगे, ठीक है, और 3 के प्लेस पे हम लोग 4 को ले आएंगे, ठीक है।
क्या हो जाएगा? 3 into 4 होगा. What will the result? फिर क्या? हम लोग what will तो do? 3 के We will change the order. Okay. In place of 4 we will write 3. यस And in place of 3 we will write 4. In place of 4 we will write 3. And in place of 3 we will write 4. And we will multiply it. Tell me what will be the result? 12. 12. In the case of multiplication, we change the order. Is the result changed? Is the result changed? Here is the multiplication. And we change the order. In the first case, there is 4 into 3. In the second case, we will change the order and write 3 into 4. Tell me, the result is same in the both the case or not? Yes, Yes. it's both same. The result in the both the case will change. Okay, that means for addition and multiplication of a whole number follow commutative law. Is it clear? Right? Yes, sir. Addition and multiplication of whole follow commutative law. और commutative law का मतलब क्या होता है? If we change the order, the result will not change. Example, we have already taken 4 plus 3, result is equal to 7. Now we will change the order. 3 plus, in place of 3 we write 4. In both the case, the result will be 7. Now 4 into 2, the result will be 8. Okay, now we will change the order. 2 into 4, the result will be 8. Okay, means we will change the order. In place of 4 we write 2, and here in place of 3 we write 4. The order is changed, but the result will same in the both the case. That means addition and multiplication of whole number follow commutative law. Is it clear? Satish, Yes, sir. कहाँ थे? हाँ, अब बताओ. घर पर 6 divided by 3, रिजल्ट क्या होगा? 3. हाँ, 3. अब ऑर्डर को चेंज कर दो. ठीक है, 6 के जगह पे 2 लिखो. ठीक है बेटा, और 2 के जगह Yes, sir. पे 6. क्या होगा? 2 divided by 6, रिजल्ट क्या होगा? 3. हाँ, 3. 2 divided by 6, 3. रिजल्ट होगा 3. 2 divided by 6, what will the result? 2 में 6 से भाग देंगे तो क्या होगा रिजल्ट? सतीश, Sir. Yes, sir. 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0.50. अरे 2 डिवाइडेड बाई 6 इसी तरह लिखेंगे ना. क्या होगा? 3. 1/3 होगा. क्या होगा बेटा? क्या होगा यहाँ पे? 1/3. मीन्स इन द केस ऑफ डिवीजन, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे ऑर्डर को चेंज किए, रिजल्ट क्या सेम है दोनों केस में? क्या दोनों केस में रिजल्ट सेम है? No, sir.
No, that means Yes, sir. division will not follow commutative law. Okay, division will not follow commutative law because when we change the order in case of division of whole number, the result will change. Okay, that's why the division will not follow commutative law. Is it clear? ठीक है, ठीक है सतीश. अब Yes, 6 minus 3, what will the result? 6 में से 3 जाएगा तो रिजल्ट क्या होगा? 3. अब 3 में से 6 गया तो रिजल्ट क्या होगा? सतीश, 3 माइनस क्या होगा? -3. क्या किया हमने? ऑर्डर को चेंज किए. yes, sir. इन द केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, इफ वी चेंज द ऑर्डर, रिजल्ट क्या सेम है? रिजल्ट क्या सेम है? नहीं, द रिजल्ट इज नॉट द सेम. दैट मीन्स subtraction and division will not follow commutative law. ठीक है, ठीक है सतीश. हाँ सिंपल कमांड. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ होल नंबर, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर will follow commutative law. Is it clear? Division and subtraction will not follow commutative law. Means if in the case of division we will change the order, the result will change. That why division and subtraction of whole number will not follow commutative law. Is it clear? Satish, Yes. Yes, sir. tell me, whole number के केस में कि कौन कौन सा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, कौन कौन सा ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? Sir, plus, हाँ, divide, minus. मैं क्या पूछ रहा हूं पहले वो सुनो. कौन कौन सा ऑपरेशन प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन, इस चारों में से होल नंबर के केस में कौन कौन सा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ को प्लस और मल्टीपल. हाँ, जोर से बोलो. Sir, plus, प्लस प्लस और मल्टीपल. यस, प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा? कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा. डिवीजन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, yeah, इसको मिटा दे. yes, sir. अब देखो इसके बाद क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ. क्या होता है बेटा? एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ. ASSOCIATIVE, एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? इफ वी चेंज द ग्रुपिंग चेंज और रिजल्ट क्या होगा? नॉट चेंज. रिजल्ट नॉट चेंज. इस चीज को हम लोग बोलते हैं. देन इफ द ग्रुपिंग इज चेंज एंड देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रिजल्ट, देन वी कैन से दैट इट विल फॉलो एसोसिएटिव लॉ. जैसे देखो 2 + 3 + 5, बोलो रिजल्ट क्या होगा? हाँ जी, 10, हाँ 10, 10. अभी देखो, अभी ग्रुपिंग किसका है? 3 और 5 का ग्रुपिंग है ना.
अभी 3 और 5 Yes, एक sir. साथ है ना, इस Yes, sir. अंदर क्या है बेटा, 3 and 5 है, मतलब क्या है, 3 और 5 का ग्रुपिंग है, और 2 क्या है, बाहर में है, आउटसाइडर है। अब हम क्या Yes, करेंगे, sir. 3 को बाहर निकाल देंगे, क्या करेंगे बेटा, 3 को 3 को बाहर निकाल दें। आउट कर देंगे, ठीक है, Mhm. और किसको इन कर देंगे, 2 को 2 को में इन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 5, टेल मी व्हाट विल द रिजल्ट, 10. 10। हमने क्या किया, यहाँ पे ग्रुप को चेंज कर दिया, ग्रुप को चेंज किया या नहीं, Yes, sir. 3 और 5 का ग्रुप था, अब किसका ग्रुप है, 2 और 2 और 5. क्या रिजल्ट में कोई चेंज हुआ, No, sir. नो। क्या बोलेंगे, अब कौन सा ऑपरेशन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ये कौन सा ऑपरेशन है, Plus. एडिशन, Plus. क्या है, एडिशन, Addition. तो क्या बोलेंगे, एडिशन है किसका, होल नंबर का, एडिशन ऑफ होल नंबर, 3, 2, 5 ये सब क्या बेटा होल नंबर है ना, हम लोग क्या कर रहे Yes, हैं, sir. एडिशन ऑफ होल नंबर कर रहे हैं। जब हम लोग ग्रुपिंग को चेंज किए, क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ा, No, sir. नो। हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन No. विल फॉलो एसोसिएटिव लॉ, क्या बोलेंगे बेटा, Addition of all associative laws. एडिशन ऑफ होल नंबर विल फॉलो एसोसिएटिव लॉ, लिख लो, एडिशन ऑफ होल नंबर will follow associative law, ठीक है, एडिशन ऑफ होल नंबर विल फॉलो एसोसिएटिव लॉ, ये समझ में आया कि नहीं, Yes, sir. मिटा दें, Yes, sir. सिंपल कहानी लिख ली, No, sir, एक मिनट, सतीश लिख लिया, Yes, sir. एक मिनट। ठीक है। अब ये बताओ सतीश, 4 Yes, sir. प्लस 3 प्लस 1 रिजल्ट क्या होगा, Sir. 8. 8। अब ग्रुपिंग चेंज करते हैं, ठीक है, इस 1 को Yes, sir. बाहर ले जाओ, ठीक है, Yes, sir. आउट कर दो, और इस 1 के जगह पे क्या करो बेटा, 4 को इन कर दो, क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 3 होगा, Yes, sir. रिजल्ट क्या होगा, 8. 8। तो मीन्स क्या हो, इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर वी चेंज द ग्रुपिंग बट द रिजल्ट इज सेम in both the case, that means addition of whole number will follow associative law, is it clear, Yes, sir. shall I erase the screen, Yes, sir. okay, now देखो मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, 3 इंटू 5 इंटू 2 रिजल्ट क्या होगा, 30. 30। अब क्या करते हैं, ग्रुपिंग को चेंज कर लेते हैं, अभी किसका ग्रुपिंग है बेटा, Sir. 5 2 का. 2 का, अब क्या करो, 2 को बाहर निकाल दो, ठीक है बेटा, Yes, sir. और 3 को इन कर दो, In. ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू 3, 3. अभी ग्रुपिंग किसका, 5 और 3 का, पहले ग्रुपिंग Yes, किसका sir. था, 5 और 2 का, बताओ रिजल्ट क्या Yes, sir. होगा, 10. Yeah, 30. 30। ग्रुपिंग तो चेंज कर दिए ना, पहले Yes, ग्रुपिंग sir. था 5 और 2 का, अब ग्रुपिंग किसका है, 5 और 3 का, क्या रिजल्ट चेंज Yes, किया, No, sir. नो। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन विल फॉलो, Yes, sir. क्या मल्टीप्लीकेशन विल फॉलो, Yes, sir. क्या यस सर, किस चीज को फॉलो करेगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर विल फॉलो, क्या फॉलो करेगा बेटा, Sir. एसोसिएटिव लॉ, Associative law. क्या फॉलो करेगा, Associative law. क्या फॉलो करेगा, Associative law.
समझ में आया? Yes, sir. हम यहां से क्या बोल सकते हैं? एडिशन एंड multiplication of whole number will follow associative law. समझ में आया? Yes, sir. अब बताओ, किसी कोई दिक्कत? हमेशा याद रखना No, कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किसको फॉलो करेगा? एसोसिएटिव Associative law. करेगा। और यही दोनों क्या करता? कॉम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा था कि नहीं कर रहा था? Yes, sir. हाँ, इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया? No, sir. लिख लो। जल्दी से लिख लो बेटा। समझ Sir, में? हो गया, हाँ, हो गया, लिख लिए। सिंपल कुमारी लिख ली? सिंपल कुमारी, यू हैव राइट इट? हैव यू राइट इट? अब देखो, अब है एक तीसरा प्रॉपर्टी, क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या था बेटा? Distribute property. डिस्ट्रीब्यूटिव। सतीश, क्या था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? क्या था? Yes, sir. Distributive property. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता? देखो सपोज करो 4 + 3 इंटू 5 करना हो तो क्या होगा? क्या होगा? 35. 35। कैसे किए? पहले क्या सर किए? पहले जो कॉस्ट में है उसको जोड़ दिए और फिर बाहर वाला को कर दिए। क्या हुआ? 4 + 3 क्या 30 होगा? 7। तो जो आंसर है उससे 7 मल्टीप्लाई हुआ। कर दिए। 7 × 5 ये क्या हो गया? 35। 35. अब देखो मैं Yes. दूसरा मेथड से करता हूँ, ठीक है? Yes. देखो हम क्या करेंगे, इस 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? 4 × 5 करेंगे, ठीक है? प्लस 4 × 5 करेंगे, ठीक है बेटा? प्लस ये प्लस साइन है ना, इस प्लस Yes. साइन को यहाँ पे Yes. लिखेंगे। उसके बाद इस 5 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 5 5 को × 3। रिजल्ट क्या होगा? 35. 35। क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट चेंज हुआ? नो सर. नहीं हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे Yes, मान लो A + B है इंटू C है, ठीक है? तो इसको हम लोग Yes. क्या लिख सकते हैं? पहले क्या करेंगे? A को C से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा? A × C A को करेंगे। ये प्लस साइन है ना, बीच में ये Yes, प्लस sir. साइन लाएंगे। फिर B × क्या करेंगे? C. करेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? Distributive. ठीक है? Dis- देखो 13 × 9 करना, ठीक है? Yes, sir. बताओ कितना होगा? Sir, 117. 117। आपको टाइम लगा ना? Yes, sir. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13 को हम लिख सकते हैं 10 + 3। Yes, sir. 13 is written in the form of 10 + 3 or not? Yes. हाँ, Yes. लिख सकते हैं ना? अब इसको मल्टीप्लाई Yes. कर दो 9 से। कैसे करेंगे? 9 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 को. 10 को. से।
ये प्लस साइन है, ये प्लस साइन को यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। अब इस 9 को किससे मल्टीप्लाई Yes. करेंगे? सर इस 9 को 9 किससे को मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से 3 से। 9 into 3, बोलो रिजल्ट क्या होगा? 9 into 10 क्या होगा? ये 90 प्लस यस सर 9 into 3 क्या होगा? 27। कितना हो जाएगा ये? 117 हो जाएगा। यस सर तो यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज करो 107, इसको मल्टीप्लाई करना 5 से, कैसे करेंगे? 107 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? सर 10 + 7 107 को क्या लिख सकते हैं? 10 + 7। नो सर 100 + 7 यस, 100 + 7। अब इसको क्या करना है? 5 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब यस बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? 5 into 100 100, बीच में कौन सा साइन है? एडिशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडिशन। उसके बाद क्या करेंगे? 5 into 7 बोलो रिजल्ट क्या होगा? ये क्या होगा? 5 into 100 500 प्लस 7 into 5 क्या होगा? 35 टोटल कितना हो जाएगा? 535। 135 देखो कितना जल्दी सॉल्व हो गया। यस सर कोई किस प्रॉपर्टी को यूज किए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। किसको यूज किए? यस सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। मतलब a प्लस बी इंटू सी को क्या लिख सकते हैं? a इंटू सी प्लस बी इंटू सी। एम आई राइट? यस सर दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? यस लिख लो, किसी को दिक्कत? नो सर मिटा दे? नो सर। नो सर अभी लिख रहे हैं लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो। सतीश बेटा लेट क्यों होता? टाइम पे क्लास क्यों नहीं आते हो? नो सर यहाँ पे बारिश हो रहा था तो टाइम का पता नहीं चला बेटा घर ही देखा करो। अब पुराना समय नहीं रहा ना, अलार्म लगा लिया करो, ठीक है। यस हाँ बेटा अलार्म लगा लिया करो, ठीक है। Shall I erase the screen? नो सर नहीं बेटा, जब जब टाइम मिले ना घर पे भी इस वीडियो को देखा करो, तब समझ में आएगा, ठीक है। यस सर समझे सिंपल कुमारी? यस सर। हाँ घर पे भी क्लास अटेंड किया करो। मिटा दे? यस सर अब चलो एक चीज बताओ, डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, देखो Yes. किसी होल नंबर, सपोज करो 4 है। 4 क्या बेटा? होल नंबर है ना। यस सर 4 को जब हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 0। हाँ, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सर 0/4 0/4 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या होगा? वही होगा हाँ सर यहाँ पे बेटा 0/4 देखो, जब हम 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तब 0 होगा, ठीक है। देखो यस सर 4 डिवाइडेड बाय 0 का मतलब क्या है? नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड वी हैव टू परफॉर्म द डिवीजन ऑपरेशन ऑन जिया कुमारी। इन व्हिच क्लास यू आर? Sir, class 8. दिस इज नॉट द क्लास 8, ठीक है। हमको क्या करना बेटा? इन 4 वी हैव टू डिवाइड विद 0, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फ्रॉम 0 वी विल मूव 4 यूनिट टुवर्ड्स राइट ऑफ 0, ओके। यस तो 1 यूनिट, 2 यूनिट,
3 यूनिट, 3, 4 यूनिट, 4. ठीक है। Yes, sir. जब हम लोग 4 यूनिट में पहुंच गए, अब क्या डिवाइड करना है? 4 डिवाइडेड बाय 0 है, हमको क्या करना होगा? इस 4 में से 0 को आउट करना होगा। क्या करना होगा भाई? 0 का आउट. 0 को आउट करना होगा, ठीक है। कितने टाइम्स आउट करेंगे? इस 4 में से 0 को कितने टाइम्स आउट कर सकती हो? Sir, 3. हाँ, कितने टाइम्स आउट कर सकते हो सतीश? Sir, 3. चलो सुनो, सपोज करो तुम्हारे पास 4 मैंगो है, ठीक है, ठीक है सतीश। Yes, sir. सपोज यू हैव 4 मैंगो, ओके, Yes, sir. और उसमें से 0 मैंगो हम तुमसे मांग लिए, तुम्हारे पास कितना बचा? 4. चलो अभी भी तुम्हारे पास 4 है, फिर तुमसे हम 0 मैंगो मांग लिए, कितना बचा तुम्हारे पास? 4. फिर मैं तुमसे 0 मैंगो मांग लिया, क्या कितना बचा? 4. इतना हम कितने टाइम्स कर सकते हैं? 3. हाँ, 3. 3 कर सकते हैं। चलो फिर तुमसे 0 मैंगो मांग लेते हैं, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 4. चलो फिर तुमसे 0 मैंगो मांग लेते हैं, कितना बचेगा तुम्हारे पास? 4. फिर तुमसे 0 मैंगो मांग लेते हैं, कितना बचेगा तुम्हारे पास? फिर 4. ये कितने टाइम्स ये कर सकते हैं? 0 में से 4 को कितने बार निकाल सकते हैं? सर कितने? अगर तुमसे हम 0 निकालते जाए, तुम्हारे पास 4 मैंगो है और तुमसे हम 0 मैंगो बाहर निकालते जाए, क्या तुम्हारे पास कभी मैंगो खत्म होगा? नहीं. तुम इनफाइनाइट टाइम तक दे सकते हो ना, यस सर. अनगिनत तक दे सकते हो ना 0 मैंगो किसी को भी। यस सर. इसलिए जब भी हम किसी होल नंबर में, ठीक है बेटा, किसी होल Yes, sir. नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं, क्या होता है? अनडिफाइन होता है। क्या होता है बेटा? अनडिफाइंड. जैसे 5/0 क्या होगा? क्या सर होगा? 0. हाँ, अनडिफाइंड. अनडिफाइंड। 11/0 क्या होगा? अनडिफाइंड। समझ में आया? यस सर. किसी कोई डाउट? नो सर. ठीक है, आप लोग क्या करोगे, इस क्लास को फिर से जाकर देखोगे, ठीक है सतीश? यस सर. नाउ आई विल एंड द क्लास।